In 5 minutes, we will start the meeting. राजेश स्टार्ट करूया का? Okay. So welcome to all students, BCA and MCA, ODL as well as online students admission taken in this regional center Nagpur. Okay, so I think two batch students we are called for this meeting. That is 2024 batch and 2025 batch who are in the final semester. Okay, they are supposed to submit the synopsis and all the things regarding the final semester. Okay, so we have eminent personality from the school, that is the computer science school from the Indira Gandhi National Open University, uh, New Delhi. Okay, that is Dr. PV Suresh sir. I welcome you, Dr. PV Suresh sir, and Dr. Akshay Kumar sir. Dr. Akshay Kumar looking after the BCA, BCA online things, project related things, and Dr. Suresh sir looking after the MCA project evaluation, all these things. Okay, so students, this is the very crucial activity we you have to complete. Okay, if you are not completing the this activity, you will not receive the degree, because you completed all the theory parts and all the lectures, whatever practicals up till now. That is another thing. And right now, this is the project is a very important thing. Okay, so you have to apply your knowledge, whatever learn in the previous semesters. You have to apply your knowledge for developing the project, and get ready the project, that preparation of the your synopsis, right from the selecting the topic, preparation of the your synopsis, and how to evaluate it, and how to develop your project, and how to documentation all these things, and how to submit it. So all these things are this will be told will tell by the our professors who are from the schools. Actually, they are sitting at the New Delhi, and they are observing all these things. Okay, so it's a very very important task. Okay, so what will happen every week? Some students coming to me, sir, what is the synopsis, what, how to we have to prepare,
everybody is coming to one by one. Okay, I told that we organize one meeting through the among the professors from the IGNOU and students. Okay, today this is the platform for students as well as the faculty from the IGNOU New Delhi. Okay, so I start from Suresh sir. You are starting, or Akshay sir will start the meeting? You are mute, sir. Unmute, plus. Basically, our plan is that since the number is very less, okay, we have 17 logins, and in that maybe staff and you and we both, maybe around 12 students or 10 students are attending. Yes, yes. So, Already. rather than giving a presentation, what we are planning is that open the session for the students. Let students start asking the questions, because now they are about to submit the project report. Okay, so already they are through to some extent. So whatever doubts if they ask, then we can clear all their doubts, whoever are students currently available. Then in future we can do an elaborate session wherein we have good numbers of students, wherein all program coordinators related to the OL and ODL projects can do the presentation, and the students will start submitting the synopsis based on that. So you can directly open the session to the students, and both of us will be answering questions related to ODL and OL, and that we will take care. Is it okay, Akshay? Akshay, is it okay? You're mute. Let's see whether what kind of questions they are raising. So let us first take the questions, and on that basis we can plan a brief discussion. Yeah. Yes. Because if they are only going to listen, then there is no use. Because they are coming to you with doubts, let them ask the doubts. Because most of them will switch off the camera and they may not be even sitting here. So we make presentation and it's of no use. So, Miss Div, Meshram, Pratiksha, Gargi, Rahil, anybody, any doubt? If you're not asking anything, means what, you don't have any questions or any doubt in your mind. I think Div Meshram, he can open the camera and start interacting. Yeah. So do you have any? Good evening. Do you have any question or doubt? Very good. Pratiksha is also there. That's really nice. Okay. So we want you to ask questions because we don't want to give a speech here. Sir, my question is, can I choose any topic in any subject? मेश्राम, दिव मेश्राम, तुला जर मराठीत बोलायचं मराठीत बोलू शकते. मला येते, पण एक्सपर्टला नाही येणार. हिंदीत विचारायचं ते विचारू शकते. See, Hindi, English, we are comfortable. Yes. And if you speak in any other language, sir will translate it for us. Yes. ओके सर. सर मुझे पूछना था कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो प्रोजेक्ट का जो सिनॉप्सिस वगैरह है वो एनी टॉपिक चूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ क्या, ये पूछ रहे थे. अच्छा, पहला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप BCA न्यू में है या BCA ODL है या ODL या ऑनलाइन प्रोग्राम? मेरा MCA OL में है. Okay, MCA OL. So Akshay ji, would you like to just take, though that question is common to everybody? प्रतीक्षा का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं. कुछ प्रतीक्षा क्या पूछने वाले हैं? पूछने वाले सर सिनॉप्सिस कैसे बनाना है वो पूछना था. अच्छा. मेरा BCA है. BCA OL है कि ODL है? सर ODL है. ODL. So Akshay, would you like to start? Okay, Akshay sir, start please. Anybody else would like to ask any question? Like, first of all, what you really need to understand, whether you are doing MCA or BCA, this particular course, the basic objective of this particular course is whatever you have learned so far in theory, that is to be demonstrated with the help of a project. So it's a big problem, right? It may be a problem which may be situated in an organization where
software development activities are already going on, right? Or it may be anywhere, it may be a new paper, new concept which has come up and you would like to work on that particular thing. Or there are so many different software companies these days who open up their website for various challenges. So they open up certain problems and they tell you that why don't you solve these problems. The only thing what you need to do, you can take those problems, but you need to take approval of those problems in the form of synopsis as asked by Pratiksha. So what is to be done in synopsis? Well, synopsis is a sort of, if you look into the guidelines, have you gone through the guidelines, Pratiksha? Have you seen those project guidelines? Not Yes, yet? sir. Yes, sir. So now project guidelines categorically tell you that what is to be done. There are two different kinds of project domain which basically, or solution domain which we recommend, right? For you software, the one thing is for sure, you cannot do a project in networking, that I'm doing networking installation. That is not going to be accepted. If you are developing software, then only your project is going to be accepted. Now, when you are developing software, you can go into the AI domain also if you want to, but it is not necessary. Like for MCA, you are MCA new student, right? So you may have that particular domain that you can even go in for machine learning oriented project also. But the basic objective of synopsis preparation is telling your own university, that is IGNOU, what exactly you expect in that particular, or what you are planning to do in this particular project. Now, the very first thing which you should be clear about is from where your data, or you need to analyze your project. Like whenever, suppose you are solving a very simple problem like finding prime numbers, right? So how you are going to solve that particular problem? First, you will like to analyze that particular situation. Okay, what are the different number inputs which might be available, right? And are those going to be the real numbers, or those are going to be the integer numbers, right? And then the next step would be like, okay, how I can use computer to solve that particular problem. So if even if such a simple problem requires you to analyze that particular situation, so is your projects, and synopsis is just a replica of that. Okay, so synopsis basically tells us what is the how what are the basic concept. Have you studied software engineering and system analysis and design, Pratiksha? Yes, sir. Fifth Right? semester में था. Yes. So what we do over there, when we try to analyze certain things, we do certain fact findings where we can meet. For example, you want to develop a system for bank, right? So a software system, and most of you have visited bank. Now, what you need to know from banking people, or for whosoever you want to develop that particular system, what exactly are the requirements, right? Then when you, since you have seen banks, so you basically know that somebody has to open an account, right? So that is going to be one of the major requirement. Then processing or making withdrawals, submitting money, or depositing money is another thing. Then getting the checkbook is maybe another thing. Sometimes you may get lockers in the bank, right? Those kinds of, so you understand some of those basic functionalities, that this is what these are the. So at top level, you will start your synopsis. You will try to understand what are going to be my basic things. So banking management system is your top level. From banking management system, you have broken it down into first account opening system, then withdrawal and deposit system, and the third one, that these are all logical solution to, or logical answers to that problem. And then finally it may be interest and other kind of subsidiary processings which may be required. I'm just giving you a raw example, right? When you are doing opening account, now you break it down further, right? Now breaking it down further, what would it require? It will require, so
what information is needed for opening an account. And when you go to a bank, you know that there is a very big form, right? So that can become your starting point, that to open an account, these many informations are required. That means if that particular information is required, somewhere down the line, what you are basically doing, what you are trying to understand, once you get that information from the people, where exactly you would be storing. So now you are trying to solve a bigger problem, making some kind of assessment, making notes of the thing, and ultimately what you would be doing is analysis modeling. Now, analysis modeling, depending on the domain you are working on, suppose you are working on object oriented domain, then obviously you will be planning to create UML diagrams, certain class diagrams, certain use case diagram. You may need to develop the use cases. And if you are doing a procedural design, procedural oriented design, then you may like to develop the data flow diagrams, like how data is flowing among various processes. Now, these three are processes which I was talking about, right? And they interact with each other, because only after opening the account you can deposit and withdraw money. Once your account is confirmed, only thereafter you can withdraw. And so these processes are all related, and that's what data flow diagram tells you, how they are related. Okay. And in the next step, then once you do that, the important thing for you to understand is what data is to be stored. As I was giving you an example of form, right? So that particular form is going to tell you what basic information is required to be stored, and on that basis you develop an entity relationship model. Or if you are doing object oriented programming, object oriented domain, then you develop a class diagram, that what are different functions and what are the attributes associated with every class. So that way you are basically doing the basic set of planning, and that is what is to be told in the synopsis. So if there are any problems over there, then we tell you that add this, add that, those kinds of things. Okay. So what you really need to do, brush up your analysis and design, go to a problem domain and try to analyze it, and then only you will be able to develop. Major things what we check is, number one, whether you have stated the problem's objective correctly or not, whether you have developed or understood whether there are, what kind of modules are going to be there in that particular problem. Then the third thing we check is whether you have made the models. And models, we expect you to do either the class diagram, and minimum level I'm saying class diagram and the use case diagram and use cases, okay, written use cases, or data flow diagram and entity relationship diagram. And thereafter you can give some details about how various procedures, or how various procedures may be performing. Like one of the things, when you are opening an account, for example, in a bank, what you may know that this particular person has not defaulted earlier with the bank. So you might check that, you may ask that particular information from that particular person, or you may check it. So there can be certain criteria which will be, or that particular person should have some, whatever requirements you have in the bank. Okay. So if there are certain criteria, those criteria you can always list as far as things are concerned. So that is how your overall system starts working. And finally, one thing which we expect from you in the synopsis is since you have made the ER diagram, you know how to convert ER diagram into a database, raw database design. So all this information is at a sufficient level. Remember one thing, when you are making synopsis, if you are MCA student, you should make it in the 3rd semester. If you are BCA student, start preparing your synopsis in the 5th semester itself, because in the 6th semester you need to submit the project. One thing which is very important, that's choose a good guide, right? If you, like you said, you are an OL student, right? So since your OL is normally being like, let me give one compliment to all the OL students who are here. What I have found that OL students have prepared better projects
than ODL projects. It does not mean that this is true right now, but so far this is what, whenever I have done very less assessment for OL students because they were very few, but ODL people are very large in number. But whatever projects I have checked, what I have found that OL students, and why they could do so, because most of the OL students have some comfort zone in computers, because OL requirement is that they know computers, right? And they have all the software available to them, which ODL students go at the study center, right? So you have availability of computers, so you can devote more time, and that is why. And in addition, you have some help. Suppose you are working in an organization, so some people who are already working with you in the area of computers, right? Like if they are MCA and with 2 years of experience, they can be your supervisor, your project guide, and that way you will be very comfortable, in preparing the final project. And so one of the most important thing is choose a language. Ultimately you are supposed to give us what language or what tool you are using to implement the project. Choose a language which you know. Now, as far as you people are concerned, you know the database technologies, right? So you can deal with, maybe you can use SQL Server, that or SQL, right? The SQL, which is available free of cost at Oracle so far, although it's a proprietary product. Many of the students choose PostgreSQL SQL, which is also a good product. So you need to tell minimum, at the minimum level, the database requirement, and the at the client side level, what language you would be using. Most of you should have gone through the JSP, because you have done web programming using JSP, where there we have done the Java scripting also. So now is the time to strengthen those concepts. Okay, so that is one of the commonest area which you can utilize. But if you want any other language or any other tool to use, because now the technology is changing very, very fast, right? Even Java, and you might come across many newer platforms. So you are free to choose them if you are comfortable with them, or your supervisor, your project guide tells you to take that way. Okay, does that make sense? So Does that answer your question, Pratiksha, or confuses you further? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, बस गाइड के लिए पूछना था। गाइडेंस कौन करेंगे? देखिए, गाइडेंस के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आप यू आर वर्किंग, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन से आप गाइड लें तो बेहतर है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए, ओडीएल सिस्टम में हमारे स्टूडेंट्स के पास काउंसलर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना? सो आपके केस में वो काउंसलर अवेलेबिलिटी नहीं है, बट लोकल स्टडी सेंटर्स आर देयर, है ना, इफ यू कैन चूज। बट best guide is a person who is known to you, because and who is doing MCA and other things, because you require guide to devote some time to you, because guide may help you because he has developed project, so he or she may help you in understanding what way you can come up with the solution to a particular problem, and or understanding the problem. First of all is understand the problem, right? Just like I was talking about the banking environment, you understand the banking environment first. Okay, so if you have understood, then only you will be able to go to the next level. Although, let me tell you, there are online many projects which are available. GitHub is one of the libraries. I think GitHub is one of the places you will find huge number of projects are there, but those are just I mean, they are onto small topics, whereas we expect you to do a project of 12 credits, right? And 12 credit means roughly 360 hours of work. That is substantial amount of work. The problem size should be large. Like if you are using database technology, then there should be 7 to 8 tables at least, right? That means there has to be around 4 to 5 entities, and some entities should have some relationship among them. So that should be the size of the problem. All right.
So don't make a problem situation very, very small, which 10 plus 2 student do. They will just make, like if they are making a banking system, they will simply say withdrawal and depositing of money. Here you are professionals, okay? So that difference has to come. Akshay sir, one question from text box. Anchal is asking, do we have to select a project topic ourselves or topics provided by the IGNOU? She is from MCA. No, I pass it on to Professor Suresh. हाँ देखिए, as of project selection is concerned, the student will do. They will do by themselves. They can always take guidance. Like अभी अक्षय जी ने कहा था, GitHub में कई projects हैं. ओके, एंड सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब रेफरेंस बुक्स में हर एक चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइजेस रहते हैं, उसमें प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं. दे कैन सेलेक्ट और दे कैन गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नियर बाय देयर होम एंड ऑफर टू ऑटोमेट दैट पर्टिकुलर बिजनेस. वो छोटा शॉप भी हो सकता है, कोई बात नहीं. आप जाओ, उनसे कहो कि हम फ्री में सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपके लिए, तो वो मान जाएगा. सिर्फ पैसा है, वो मानेगा नहीं तो everybody will be happy to take work freely. So you will go and say that we will try to develop some software for you, we will run it on the laptop and show it to you. तो क्या है कि आप लोगों को कोई भी entertain करेगा, and so IGNOU will not provide any problems because the number is very large. In ODL we have thousands of students, and then in OL we have few hundreds of students. Now what I would like to say is that Pratiksha, what is the question of Meshram? Dev Meshram? What is your question? Mishram, Unmute. अनम्यूट कर. हां, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काय आहे तुमचं? सर कोणतं पण क्वेश्चन म्हणजे आपण चूज करू शकतो की सरांनी दिलेले तेच आपण घ्यायचं, म्हणजे गाईडन्स कुठलाही नाही. हे बघा, कुठलाही प्रकारचा प्रोजेक्ट तुम्ही चूज करू शकता, कुठलाही प्लॅटफॉर्म. ठीक आहे. आणि तुमच्या जवळपास कोणी सॉफ्टवेअर इंजिनियर असतील, रिलेशन मध्ये असतील, त्याला तुम्ही गाईड म्हणून करू शकता. What is the question she is asking? क्वेश्चन, तुमचं क्वेश्चन काय? Can I choose any topic? That's what she was asking. Okay. Anyway, I'll just narrate a very simple story for you. आप लोगों ने कुंग फू पांडा मूवी देखी है? यस सर. Most of you might have seen it. उस कुंग फू पांडा में the first time when Kung Fu Panda is being trained in the part 1, right? Yes. And his master offers him dumplings. So he says, now you are free to choose, but don't let him choose anything. Don't let him eat anything. Towards the end, only one is left, and that also finally he says, all right, that is the same situation, beta. Okay, one thing, You can choose anything, but it is to be approved. It should be sufficient, as I was trying to talk about. It should be a good problem. If it is not a good problem, it will be just like Kung Fu Panda. You will not get approval of the project. Okay? Does that make sense? Yeah. Okay, what I want to add is, see, I think you can understand both English and Hindi. Most important is, this project is part of your BCR MCA program. Okay? Yes, sir. So this project is there forever in your life. आप BCA डिग्री, MCA डिग्री जब तक आपके पास रहेगा, तब तक ये प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस भी रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा प्रोजेक्ट में आपको इतना मार्क्स आ गया, क्या प्रोजेक्ट किया था. ओके, एंड आपको रिपोर्ट भी दिखाना पड़ता है, एंड वो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है एम्प्लॉयर को कि दिस स्टूडेंट इज अ सीरियस स्टूडेंट और नॉट ए सीरियस स्टूडेंट. सो हमारा सजेशन ये है कि आप कभी भी जनरल प्रॉब्लम सेलेक्ट मत करना, जो बहुत लोग आपके सेंटर में या क्लास में सेलेक्ट कर रहे हैं. आई विल टेल यू सम नेम्स: लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, देयर आर सम नेम्स. ओके, e-shopping. Okay, then again, something like a Flipkart, something like an Amazon, you will find many projects that are floated.
ओके, आपको भी कहा जाता है कि आप इसमें कर लो, ठीक है। तो आप अगर क्राउड के साथ कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके करेंगे, आपका डिग्री का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोथ बीसीए एंड एमसीए प्रोग्राम्स में। इसलिए मैं ये एडवाइस करना चाहता हूं कि नंबर 1, जैसे अक्षय जी ने कहा था, बीसीए के मामले में इन द 5th सेमेस्टर, एमसीए के मामले में इन द 3rd सेमेस्टर यू कैन स्टार्ट योर project work. So 1 semester before, during this time what you have to do is that try to get into some place. Don't try for employment. आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आप सिर्फ आपके घर के सामने या आपके ऑफिस के सामने आप ऑफर करो कि मैं ये पढ़ रहा हूं इग्नो से, मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूं। ओके, तो नॉर्मली पीपल विल एक्सेप्ट इट, एंड वंस दे एक्सेप्ट इट यू देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। जैसे बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हम ये लिखते हैं कि अगर आप बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है तो आपने कहीं सिस्टम स्टडी किया है क्या? देखिए, आपको बैंक में अंदर जाकर बाहर आने से आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट पता नहीं चलेगा। आप पैसा निकालते हैं, नहीं तो पैसा जमा करते हैं, तो वो एक एडिशन हो गया, एक सब्सट्रैक्शन हो गया। तो आप कहेंगे मैंने एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, एंड उसमें आप स्टडी करेंगे तो उसमें एक ऐड ऑपरेशन है, एक सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन है, जो 2nd स्टैंडर्ड या 1st स्टैंडर्ड का बच्चा करता है, तो इट विल बिकम नल एंड वॉइड, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दे आर आल्सो मीनिंगफुल प्रोवाइडेड आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सिस्टम स्टडी करेंगे। तो अगर आप कहेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम करूंगा, कोई लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरियन से बात करो, कहो कि हम एक बार आपका सिस्टम स्टडी करना चाहते हैं, तो उनसे पूछो कि आप क्या क्या रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, आप बुक्स कैसे प्रोक्योर करते हैं, आपका हर दिन क्या न्यूज़पेपर्स आता है, आप कैसे ट्रैक करते हैं, आप पेनल्टी कितना लगाते हैं, आप कितने दिन के लिए देते हैं, स्टूडेंट्स को अलग लगाते हैं क्या, कौन कौन ले सकता है, यू विल हैव मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वो इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, एंड अगर हो सकता है तो उनसे एक लेटर भी लेने से अच्छा रहेगा कि ये स्टूडेंट ने हमारा पास सिस्टम स्टडी किया था। फिर उनके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो, वो यूज करे या ना करे हमें लेना देना नहीं है। आप अपना लैपटॉप में रन करके दिखाओ, नहीं तो उनके पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हर जगह होता है, उनके कंप्यूटर में रन करके दिखाओ, दैट प्रोजेक्ट विल हैव लॉट ऑफ वैल्यू। लेकिन आप एज्यूम करेंगे कि लाइब्रेरी ऐसा रहेगा, उसमें ये रहेंगे, एंड ऐसे एज्यूम करके कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, उसका वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोग वैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं। अगर ओएल में 500 स्टूडेंट है तो शायद गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल डू सिमिलर प्रोजेक्ट। ओके, दे एज्यूम, they don't experience, they don't speak, they think they know, but no software engineer knows anything about any company। उनको जाना पड़ता है, ग्रुप को बैठना पड़ता है, पूरा काम करना पड़ता है। तो आप ये याद रखो कि बीसीए एंड एमसीए में जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे उसका लाइफ लॉन्ग वैल्यू। ओके, आप कई कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट किया, आप कह सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट किया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बीसीए एंड एमसीए वैसा नहीं है, आपका मार्क्स लग चुका था तो वो पूछेगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, वो हमको रिपोर्ट दिखाओ, उस पे हमारा सिग्नेचर भी होगा। इट इज नॉट इजी टू गेट अवे, एंड वो ठीक रहेगा, उनको इंप्रेशन रहेगा कि ये स्टूडेंट के टाइम से सीरियस है। नाउ you start early, even in the 4th semester you can start, but you can submit your project proposal only in the 5th semester in the case of BCA, and in the 3rd semester in the case of MCA. So take the project work seriously। फिर आपको लग सकता है कि सर मैं एक रूरल एरिया में हूँ, उधर कोई मार्केट या शॉप नहीं है जो मुझे परमिट करेगा, तो ऐसे मामले में मैं क्या करूँ? ओके, ऐसे मामले में जैसे अक्षय जी ने कहा था, आप GitHub एक वेबसाइट है, उधर चले जाओ, उधर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो और काम करना शुरू करो। लेकिन शुरू करने के पहले आपको एक चीज याद रखना है कि आपको इग्नो बीसीए एमसीए प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 साल लगने वाला प्रोजेक्ट, बाय मिस्टेक वो ले लिया आपने, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आप बाहर से जो गिटहब या कहीं से लेते हैं ना, वो थोड़ा देख के आपको लेना है।
एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में लास्ट पेज में एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेटर का फॉर्मेट दिया गया था। उसमें हमने लिखा था कि 3 to 6 months इन द केस ऑफ बीसीए, एंड इन द केस ऑफ एमसीए आल्सो वी हैव रिटन। तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन 3 months वर्ती रहना है वो प्रोजेक्ट, बीसीए के मामले में। एंड एमसीए भी चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी मंथ्स मिनिमम इट शुड बी देयर। नाउ देखिए, प्रोजेक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी है लर्निंग के लिए। तो आपको डाउट आ सकता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके लिए 3 महीना लगेगा या 4 महीना लगेगा? शुरू करेंगे जब होगा तब होगा, हम पूरा कोशिश करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट में लर्निंग ऐसा होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है, नो नीड टू आस्क एनीबॉडी, आप डायरेक्टली गूगल में चले जाओ, उनसे पूछो कि हाउ डू आई एस्टिमेट द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। वो आपको पूरा फॉर्मूला निकाल के देगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आप पढ़े थे। फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किताब खोलने का जरूरत नहीं है, गूगल के पास सारे किताब अवेलेबल है, आप करो। वो आपको प्रोसेस बताएगा कि तुमको कैसे पता चल सकता है कि वो प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। तो अगर 3 महीना है तो 3 महीना का ले लो, क्योंकि आपके पास तो एटलीस्ट 7-8 मंथ्स तो है अगर आप एक सेमेस्टर पहले शुरू कर रहे हैं। तो वैसा एक अच्छा प्रोजेक्ट चुनो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आपको चुनना नहीं है, इसका वैल्यू बहुत कम होगा। कभी फ्लूक में मार्क्स भी आता है, लेकिन उस मार्क्स का भी कोई वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्री में नॉलेज देखते हैं, ज्यादा मार्क्स आने पर उसका कोई भाव नहीं मिलता। एक लेवल तो होना चाहिए मिनिमम, नो डाउट, लेकिन 99% लेके आया, नौकरी कोई नहीं देने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दिया तभी नौकरी मिलेगा, अच्छा काम किया तभी नौकरी मिलेगा। तो ये आप याद रखो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बोथ फॉर ओएल एंड ओडीएल स्टूडेंट्स इज दैट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अवेलेबल है वेबसाइट। प्रोजेक्ट गाइडलाइंस को डाउनलोड करो एंड उन गाइडलाइंस में हर एक लाइन को पढ़ो। आप प्रोजेक्ट गाइडलाइंस अगर ढंग से पढ़ लिया है तो आपको डाउट्स मिनिमम आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये करता है कि वो फ्रेंड को पूछता है, नहीं तो स्टडी सेंटर में किसी से पूछता है, वो कुछ बोलता है और ये फॉलो कर लेता है, लास्ट में फेल हो जाता है। फिर हम जब पूछेंगे कि तुमने गाइडलाइंस पढ़ा, वो कहेगा कि मेरा गाइड ने कहा। वो गाइड कौन है? इनको जो ट्रेनिंग दिया था बाहर। ओके, वो गाइड बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता है, आप ही को नहीं देता, कई इंस्टीट्यूट के लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो अल्टीमेटली सफर होने वाला स्टूडेंट होता है। इसलिए जो हेडक्वार्टर से आपको जो किताब मिलता है या वेबसाइट में लगे रहते हैं, उनको जरूर पढ़ना। बोथ बीसीए एंड एमसीए प्रोजेक्ट्स के मामले में आप हर एक लाइन प्रोजेक्ट गाइडलाइंस का पढ़ो, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, एंड आप लोग डायरेक्टली mca@igno.ac.in, bca@igno.ac.in ODL स्टूडेंट्स, BCA OL associates@igno.ac.in, MCA OL associates@igno.ac.in, इन ईमेल आईडीज में जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें मेल करो। आपको नॉर्मली विद इन 24 आवर्स जवाब मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली चेक करते हैं फैकल्टी एट द हेडक्वार्टर्स। जो हमारा परव्यू में है, आपको आंसर 24 आवर्स में नॉर्मली मिल जाता है। ओके, रेस्पॉन्स आपको मिल जाता है। तो इसलिए पहला स्टेप है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पढ़ो। इसके बाद आप अपना डाउट्स नोट करो, उन डाउट्स को गूगल में एंटर करो। अगर जवाब मिल गया बढ़िया है, नहीं मिला ईमेल कर लेना, ठीक है, हम आपको गाइड कर लेते हैं। प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। डमी प्रोजेक्ट्स अवॉइड करो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जो गिटहब में मिलता है वो कर लेना, या किसी को अप्रोच कर लेना। अप्रोच करेंगे आप सीखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कई कंपनीज के सामने जाना पड़ता है। तो अभी से जाना शुरू करेंगे, वो आदत पड़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस बढ़ जाते हैं। वो क्या एक्सपेक्ट करता है वो भी आपको थोड़ा पता चल जाता है। तो वो आप कोशिश करो, जब नहीं मिलता है तब गिटहब में चले जाओ। ओके, अब गिटहब में भी आपको लगता है कि यार इधर जो भी प्रॉब्लम्स है ये थोड़ा मुझे तो मुश्किल है करना, देन यू रेफर टू द रेफरेंस बुक्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये सब जो रेफरेंस बुक्स है, नॉट इग्नो कोर्स मटेरियल। जो कोर्स मटेरियल में यूनिट के लास्ट में हम बुक्स देते हैं, उन बुक्स में देखो, उनमें प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें एक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो, काम करना शुरू करो। अब गाइड का बात आता है। गाइड रहेगा, लेकिन गाइड के पास शायद टाइम नहीं रहेगा। तो आप गाइड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत होना। गाइड सिर्फ गाइड करने के लिए है, गाइड आपका काम नहीं करेगा। हम ये देखते हैं कि वाइवा में कहता है कि गाइड ने किया,
गाइड अगर किया है तो हम कहते हैं अब गाइड कर दिया तो गाइड को मार्क मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो फेल हो जाता है, दोबारा अपना आप करता है। हम स्टूडेंट को इसीलिए फेल करते हैं ताकि वो अपना आप को करेक्ट करने का मौका मिले और नौकरी मिले। अगर मैं उनको क्लियर कर लेता हूं वाइवा में, वो कभी जिंदगी में सुधरेगा नहीं और अनएम्प्लॉयड घूमता रहेगा रोड पे। इसलिए आप गाइड रहेगा, लेकिन उनसे सिर्फ गाइडेंस लेना, उनसे काम मत कराना, काम आपको करना है। एंड गाइड जो प्रॉब्लम देगा वो मत लेना। उनके पास कई प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कई स्टूडेंट्स को गाइड किया होगा, तो किसी ना किसी का रिपोर्ट है तो वो कहेगा कि ये कर लो, ठीक है, वो मत लेना। वो आप अपना आप चुनना। मैं ऑलरेडी बताया, एक है डायरेक्टली किसी के लिए करना, नहीं तो गिटहब से ले लो, नहीं तो रेफरेंस बुक से ले लो, लेकिन कहीं और सोर्स से नहीं लेना है। These are the things. And another thing, project proposal में both BCA में MCA में already you will do 30% of the work. आप जब प्रॉब्लम देंगे उसमें जो लिस्ट लगा हुआ था प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में, वो सब आपको इंक्लूड करना है। उसमें कुछ भी छूट जाएगा, आपका प्रपोजल डिसअप्रूव हो जाएगा। वो बहुत लंबा लिस्ट है, उसमें 25-30% काम हो जाता है। एंड इन सब के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफार्मा जो फिलअप करेंगे, हर एक फील्ड फिलअप करना, कोई फील्ड छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे, गारंटी नहीं कि आपका प्रपोजल अप्रूव होगा। कई एक्सपर्ट्स ये करते हैं कि वो ब्लैंक पे मार्क करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, लिखते हैं कि परफॉर्मा इनकम्प्लीट। कहीं सिग्नेचर नहीं रहता गाइड का, कहीं स्टूडेंट का सिग्नेचर नहीं रहता, कहीं डेट नहीं रहता, कहीं सॉफ्टवेयर क्या यूज करने वाले वो लिखा नहीं रहता, टाइटल लिखा नहीं रहता, एड्रेस लिखा नहीं रहता, तो वो किसी और को दे देता है कि तुम भर लो, सबमिट भी कर लो। वो कोई भरता है अपना हिसाब से, सफर होता है स्टूडेंट। इसलिए आप अपना भरो, हर एक फील्ड भरो, एक भी फील्ड नहीं छोड़ना है, सिग्नेचर हर एक जगह करो। कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट होने का चांसेस है। एक बार रिजेक्ट हो गया, 1 साल खत्म, ये मान के चलो। इसके बाद आप आएंगे सर प्लीज कहेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स है जो आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम करते नहीं है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को एक ही तरह देखना है, ठीक है। तो ये सारा कर लेना। एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कोर्सेस कुछ है, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, एंड एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड। ये तीनों कोर्सेस पे ग्रिप रहना जरूरी है, क्योंकि आप डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3-4 कोर्सेस है जो कोर बनते हैं आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। उनको बढ़िया पढ़ना। एंड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो जरूर सारा एक्सरसाइजेस, प्रॉब्लम्स जो भी आपको दिया जाता है उनको जरूर अपना प्रोग्रामिंग करके सॉल्व करना। किसी का भी प्रोग्राम लेके रन नहीं करना है, कहीं भी उसको ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करना है, अपना आप लिखना है। और इधर मेरा एक सुझाव है कि आप स्टूडेंट लेवल पे है अभी, तो कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले एल्गोरिथम लिखना। अगर आपको डाउट है कि एल्गोरिथम कैसे लिखना है, हमको पता नहीं सर, कभी कहा ही नहीं है, तो आप वो भी, हमारा गूगल है, उनसे क्वेश्चन करो कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम। इट विल शो यू। विदाउट राइटिंग एल्गोरिथम डोंट राइट प्रोग्राम, whether it is C language or Python or C++ or anything। क्योंकि आप जब एल्गोरिथम लिखेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम बहुत कम हो जाता है। 10-15 मिनट में आप लैब में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, आपका 3 घंटे में एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होता। और कोई ना कोई छेड़ता रहता है, बोलता है कि यार वो कॉलम सेमीकॉलम रखो, इधर डॉट रखो, उधर ये रखो ये रखो, लेकिन लॉजिक में प्रॉब्लम है, आपका आंसर नहीं निकलेगा। फिर अल्टीमेटली आप कहेंगे मैंने कर दिया, लेकिन एग्जाम में तो नहीं आने वाला है। एंड आजकल अगर नौकरी चाहिए तो 6-7 लेवल्स पार करना पड़ रहा है। पहला रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद कोडिंग टेस्ट होता है, इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसके बाद HR इंटरव्यू होता है, इसके बाद MD के साथ होता है। तो इतना आसानी से आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है अगर आप अपना आप को चीट करेंगे तो पहला एल्गोरिथम लिखो, इसके बाद प्रोग्राम लिखो, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पढ़ो, अपना प्रॉब्लम चुनो, किसी के बातों में आकर जल्दबाजी से मत सेलेक्ट करना। वो कहेगा कि मैं आपको दे दूंगा, अगर आप नहीं कर पाया है तो आपको ये नहीं लग रहा चाहिए कि यार ये बहुत अच्छा है, लास्ट मिनट तक मैं नहीं कर पाया तो वो दे देगा मुझे, ठीक है। तो ये सारा काम नहीं करने वाला है, काम सीरियसली लेना है एंड यू हैव टू कैरी ऑन।
एज ऑफ गाइड इज कंसर्न, आप जो भी क्वालिफाइड है, जो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था, उस हिसाब से आप किसी को भी सेलेक्ट करो. एंड गाइड normally will not have time to guide, and you don't take work from the guide, only you take guidance from the guide. Okay, guidance means only telling to you what to do, not doing by himself or herself. Student has to do the entire work. They should be able to demonstrate. कई experts आपको सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं, इसके बाद पूछते हैं कि तुमने ये एक्शन जो हो रहा है सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन किया था, एक्सप्लेन करो. ओके, ऐसा नहीं कि मैंने सॉफ्टवेयर रन कर दिया और वो लोग सोचेंगे कि मैंने डेवलप कर दिया और मार्क्स मिलेगा. नो, नॉट एट ऑल. ओके, अभी मैं गूगल मीट में हूं, तो गूगल मीट हम सब में सब लोग रन कर सकते हैं. अगर मैं कहूंगा कि मैंने ही गूगल मीट डेवलप किया, चाहिए तो रन करके दिखाऊंगा. आपको पता है गूगल मीट तो कोई भी रन कर सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैंने गूगल मीट के लिए कोड लिखा था. तब वो कहेगा कोड दिखाओ, फिर पूछेगा कि इसका एक्सप्लेन करो मुझे, कि कोड में ये पार्ट, या तुम मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा है उसका कोड लिख के मुझे दिखाओ. ओके, इसलिए आप लोगों को पूरा सक्षम रहना है, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव. आप प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में देखेंगे आपको लास्ट डेट्स फॉर सबमिशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपको डेट्स के बारे में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज मेल टू योर रीजनल सेंटर. इन दिस केस इट इज RC Nagpur. You can mail to rcnagpur@igno.ac.in, because the regional center receives the project synopsis from you and it evaluates and it gives the result back to you. It is the regional center which accepts the project reports from you and again conducts viva voce after the evaluation. इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज होते हैं प्रोजेक्ट्स के मामले में, वो सारा आप rcnagpur@igno.ac.in में मेल भेजो, और कहीं मेल मत भेजना. अगर जवाब आया तो उसको सीरियस मत लेना. ठीक है, आपका जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसी पे आप पूछो, उधर से जवाब आएगा उसी को ले लो. ये मत कहो कि मैंने रीजनल सेंटर विजिट किया, उधर का एक स्टाफ ने मुझसे कहा था कि ये करो, मैंने कर दिया. बिल्कुल नहीं. वो RC में बैठे हो या इग्नो हेडक्वार्टर में बैठे हो, किसी का भी सुझाव आपको रिकॉर्ड में ऑफिशियली नहीं मिला, उसको आप सुनने का जरूरत नहीं है. तरह तरह का लोग बैठे हैं, उनको पूरा जानकारी नहीं होता, लेकिन जब स्टूडेंट आकर पूछेंगे वो जवाब दे देता है. वो कहेगा कि हाँ दिसंबर लास्ट डेट है, और दिसंबर में आएंगे आप रिपोर्ट पकड़ के, सर बोलेगा नेक्स्ट ईयर दे दो. आप कहेंगे आप ही का स्टाफ कहा था. ठीक है, वो स्टाफ कौन है वो आपको दिखाई नहीं देगा. दिखाई देने पर वो कहेगा मैं कहा नहीं है. ठीक है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल रिकॉर्ड पे जाओ, ईमेल पे जाओ, दैट्स इट. ईमेल पे या डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट में लिखा था उसके ऊपर. डोंट आस्क योर स्टडी सेंटर पीपल, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर नॉट डेल्ट बाय द स्टडी सेंटर. प्रोजेक्ट्स आर डायरेक्टली डेल्ट बाय द रीजनल सेंटर. एंड जो एकेडमिक उसमें जो कंटेंट है वो सब इग्नो हेडक्वार्टर्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देखता है. गाइडलाइंस में एक भी लाइन में आपको डाउट है वो आप जो ईमेल आईडीज मैंने कहा था उधर भेज दो. एडमिनिस्ट्रेटिवली डेट कुछ आपको लगता है कि कहाँ सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, वो सब रीजनल सेंटर से पूछो, या आप हमें पूछेंगे, हम उनको फॉरवर्ड करेंगे. कभी कभी वो लोग हमको फॉरवर्ड करते हैं, वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. तो इस हिसाब से आप प्रोजेक्ट करेंगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने किया था, एंड उसका वैल्यू भी रहेगा. ठीक है, आप और भी क्वेश्चन है तो बाकी लोग या द सेम स्टूडेंट्स और एनी अदर स्टूडेंट्स, दे कैन डेफिनेटली आस्क. एक छोटा सा इंटरजेक्शन है सर. दिस इज फॉर OL स्टूडेंट्स. आप लोगों को सिनॉप्सिस LMS पे ही सबमिट करना है, राइट? आपका LMS ओपन है अभी. 31 अक्टूबर तक का 31 अक्टूबर एग्जिस्टिंग तक का लास्ट डेट है, तो आप सिनॉप्सिस उधर जमा कर सकते हैं अभी भी. नंबर 2, मैक्सिमम टाइम अपना सिनॉप्सिस बनाने में दीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस से आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम उसको रिफ्लेक्ट करता है. तो प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को समझने के बाद किस तरीके से उसका बेसिक सोल्यूशन निकल के आएगा उसको समझिए, वही सिनॉप्सिस में आपको इनपुट करना है. दैट इज कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट सब प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस लॉजिक एक्सेट्रा. तो इस पे सबसे ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट करें.
सॉफ्टवेयर डेवलप करने पे अभी कंसंट्रेशन ना करें, ओके, बट मेन इसमें अपना करें, कंसंट्रेशन करें कि सिस्टम को एनालाइज करें। और जैसा प्रोफेसर सुरेश ने बहुत क्लियरली आपको बताया कि अगर आप सिस्टम को समझेंगे ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कहीं से उठा लिया, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम कहीं से उठा लिया, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। गिटहब या कहीं से भी आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में अगर हेल्प आप ले रहे हैं, उसको समझिए अपने तरीके से, अपने कंडीशन, अपने कंट्री के हिसाब से, अपने सिस्टम्स के हिसाब से, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम थोड़े अलग है हमारे, तो उस तरीके से एक्चुअल सिस्टम्स की थोड़ी सी स्टडी करें। हमारी बुक शॉप्स का मैनेजमेंट सिस्टम भी बिल्कुल अलग है, हमारी लाइब्रेरीज भी अलग तरीके से ऑपरेट होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा करेंगे आप, समझिए। सबसे पहली चीज़ यही है, प्रॉब्लम को समझना थ्रू द मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर वो आप कर पाएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल। एनीथिंग एल्स? और किसी को अभी ओडीएल के स्टूडेंट रीजनल सेंटर में सबमिट करना है, बरोबर ना सर सुरेश सर? क्या है? ओडीएल स्टूडेंट जो सिनॉप्सिस है फिजिकली रीजनल सेंटर में, या दे विल सबमिट एट द रीजनल सेंटर। ओके, सब लोग सुन लीजिए फिर से एक बार। ओएल के जो स्टूडेंट है, बीसीए एमसीए के ओएल के स्टूडेंट है, वो एलएमएस पोर्टल में अपलोड करना है 31 अक्टूबर तक। और बाकी जो एमसीए ओडीएल और बीसीए ओडीएल के स्टूडेंट है, वो 31 अक्टूबर तक रीजनल सेंटर में आप खुद आके सबमिट कर सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट से किए तो भी चलेगा। और सिनॉप्सिस सर ने जैसा बोला, सुरेश सर ने, हर फील्ड भरना है, ठीक है, हर फील्ड भरना है। वो जो फॉर्मेट है उसका सिनॉप्सिस का, हर फील्ड भरना है, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और वहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, आपके गाइड का रहेगा, गाइड का बायोडाटा रहेगा, ठीक है। वो सब करके हमें भेजना है 31 तारीख तक। यहाँ पे पहुंचना है 31 तारीख तक। नहीं तो आप बोलेंगे सर 31 तारीख को मैं शाम में पोस्ट में डाल दिया था, वो 8 दिन के बाद मिलेगा। नहीं, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे और उसका इवेल्युएशन हम लोग करेंगे, और उसका बाकी का फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर सुरेश सर? बीसीए ओएल के बारे में जरूर बता दूंगा थोड़ा सा और। बीसीए एमसी ओएल, उसमें आपका जो एक्सेप्टेंस है वो भी ऑनलाइन ही आता है आपके पास, और उसमें कमेंट्स होंगे, कमेंट्स को जरूर देखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट लुकिंग एट द कमेंट्स। नीचे आप देखेंगे कहीं एक छोटा सा कमेंट का मार्क बन के आएगा, बहुत छोटा सा आइकन होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कमेंट जो आपके इवैल्यूएटर ने दिए हैं वो दिए होंगे, ठीक है। तो वो कमेंट्स ऑनलाइन ही, ऑनलाइन क्या मतलब ऑफलाइन ही होते हैं कमेंट इन द सेंस, बट आप हमेशा उन कमेंट्स को देख सकते हैं, और वो कमेंट्स आपको उसको फुलफिल करने की कोशिश करें, क्योंकि कमेंट्स आपके बेहतर होने के लिए, आपके प्रोजेक्ट के बेहतरी के लिए दिए जाते हैं, राइट। आंचल कनौजिया ने पूछा है, व्हेन विल बी द प्रोजेक्ट गाइडलाइन विल बी अवेलेबल? दिसंबर 2025। प्रोजेक्ट गाइडलाइन तो सब एक जैसे ही है ना सर? यस, सेक्शन वाइज ऐसा कुछ नहीं है। नो नो नो, देखिए कभी कभी डेट लिखा जाता है लेकिन उसमें चेंज नहीं है तो वो वही रहता है। ओके आंचल, आप समझिए, जो अगर चेंज नहीं होता है तो वही डेट रहेगा, यानी कि अभी जो गाइडलाइन चल रही है वही गाइडलाइन दिसंबर के 25 के रहेगा, ठीक है। ओके, प्रतीक्षा आणि मिस मेश्राम और राहिल शेख गार्गी, कुछ पूछना है किसी को? सर गाइड में किसका नाम लिखना है वो समझ में नहीं आया। नहीं, वो देखिए डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, ऐसा आपको थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, पहला गाइड का क्वालिफिकेशंस क्या है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में देखो, ठीक है। वो देखने के बाद आपके पास एकेडमिक काउंसलर्स भी हैं, ठीक है, और आपके पास इंस्टीट्यूशंस भी है, आपके पास कुछ कंपनीज भी हैं, तो कई क्वालिफाइड लोग हैं ये सारे जगह पे। आप उनके पास जाना है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप हमारा गाइड बनो, क्योंकि हम बीसीए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए गाइड का नाम हमने लिखा था, ठीक है, क्योंकि यू शुड स्टार्ट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एज पार्ट ऑफ बीइंग ए कंप्यूटर साइंस पर्सन। ओके, तो कोई ना कोई आपका मानेगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं। एंड
उनका आप सिग्नेचर जो भी है उसमें फॉर्मेट दिखाइए, वो कर देगा। गाइडेंस भी ले लो अगर वो आईटी कंपनी का है तो, लेकिन कभी भी उनको काम मत देना करने के लिए। अगर वो ऑफर किया है तो मना कर लेना, यस ठीक है। सर। हाँ सर। या सो देखिए, बेसिकली प्रोजेक्ट इसीलिए है कि आपको घर के बाहर निकलना है, ठीक है। घर के बाहर निकलना है, लोगों के साथ बात करना है, एंड गाइड को लेना है। अपना जो भी प्रोजेक्ट है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में भी सिस्टम स्टडी करना है, ठीक है। तभी आप जब बीसीए या एमसीए कंप्लीट होगा, यू विल बी एबल टू गेट इनटू द मार्केट। विदाउट गोइंग आउटसाइड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग। मार्केट में जाकर कहीं नौकरी मिलने के बाद वो कह सकता है कि घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन आप नौकरी भी होम से ही चाहिए तो डायरेक्टली वो थोड़ा मुश्किल है आजकल, ठीक है। ये कल्टीवेट करने के लिए ही ये सारा चीज हमने रखा था। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कल्टीवेट इट, देन यू विल बी एबल टू डू थिंग्स बेटर। बट आप आराम से बैठेंगे, आपको गाइड कहां से आएगा? पुराने दिनों में कोई जब करेगा, भगवान तुरंत अपेयर हो जाएगा, कहेगा कि क्या चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो आपको रिपोर्ट दे देगा। ओके, वो अलग बात है। अभी तो सबको काम करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। इस सिलसिले में आप अच्छा कंपनीज में जाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, वो काम वो गाइड करे या ना करे, सुझाव तो अच्छा देगा आपको। ओके, यू विल गेट इंस्पायर्ड। ओके, दैट इज वेरी यूजफुल। और प्रोजेक्ट गाइडलाइन में जो भी डेडलाइंस दिया है ना, वो सब लोगों को फॉलो करना है। अगर अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो आपका सेमेस्टर आगे जाएगा और आपका रिजल्ट भी आगे जाएगा, या उसका आप पास लेट हो जाएंगे। फिर कुछ अपॉर्चुनिटी रहेंगी, गवर्नमेंट की रहे या प्राइवेट की रहेंगी, तो आपका मिस हो जाएगा। फिर आप जब एडवर्टाइज निकलती है तो फिर यहाँ पे भागते आते, सर मेरा प्रोजेक्ट का क्या हुआ। ऐसा नहीं करना है। जो प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस है, जो भी 31 तारीख तक, अक्टूबर तक आपको सबमिट करना है तो सबमिट ही करना है, ठीक है। अगर लेट होते तो अगले इसमें जाएगा फिर वो, ठीक है। इसलिए डेडलाइंस जो भी है सब लोग फॉलो किए तो आपका जल्दी से जल्दी आपका डिग्री हो सकता है, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं क्या? एंड करना है सर? और कुछ है क्या बताने का? नहीं, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस यू कैन वाइंड हाँ, अप। और कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोगों को? और हमारा जो सब एक बार हम लोगों को सब सिनॉप्सिस अगर मिलने के बाद हम लोग मे बी फिजिकली फैकल्टी को, इवेल्युएटर को यहाँ पे बुलाएंगे। उस दिन भी हम लोग स्टूडेंट्स जो भी आ सकते हैं उस दिन यहाँ पे आना है, और यहीं पे आके इवेल्युएटर के सामने ही इवेल्युएशन होगा और आपके सामने ही डिस्कशन होगा क्या कमी है उसमें वगैरह। वो तो बेटर अच्छा रहेगा, जैसे कि हम लोग सेंड करते हैं या फिजिकली सेंड करते हैं, उससे उसके बजाय हम लोग इवेल्युएटर यहीं पे यहाँ पे कितने लोग नगर नागपुर सिटी में से है? कितने लोग हैं नागपुर सिटी में से? मुझे प्रतीक्षा। लगता है कि ओनली 2 to 3 पीपल आर ऑनलाइन। हाँ, यस। एक तो श्रेया ढवळे फ्रॉम नागपुर, प्रतीक्षा फ्रॉम, तुम सर, ओके। हाँ, भंडारा जवळ, डिस्ट्रिक्ट। हाँ जवळच है ना। हो। हाँ ठीक है, आंचल। ओके ओके। हाँ, आप लोग यहाँ पे आरसी में आ जाएंगे जिस दिन इवेल्यूशन का डेट रहेगा, हम लोग आप लोगों को बताएंगे। उस दिन इवेल्यूशन रहेगा, उस दिन चर्चा भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उस दिन हम लोग करेंगे, ठीक है। जो नज़दीक है वो लोग आ सकते हैं, नज़दीक नहीं है तो फिर इवेल्यूशन करने के बाद हम पोस्ट से भेज देंगे। अगर वहाँ पे कुछ कमेंट रहे तो वो बता देंगे कि वो ये इम्प्लीमेंट करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है तो अभी पूछना है, हाँ? बाद में मुझे आके यहाँ पे पूछना नहीं है। वो तो बाद में ही पूछेंगे, डाउट तो हाँ, तभी आएंगे जब सिनॉप्सिस बनाएंगे। अरे हाँ, आप कैमरा ऑन नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि मैं भी ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो न्यू टू दिस ओडीएल सिस्टम। आई केम फ्रॉम द रेगुलर सिस्टम। ओके, कुछ नहीं तो हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे सर ने बताया, जो ईमेल आईडी सर ने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है वो ले लो। और आप लोगों के एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहो, जैसे कि बीसीए के बच्चे या एमसीए के बच्चे एक में को कम्युनिकेट करते रहो, आपका क्या हुआ, क्या नहीं, कब क्या चल रहा है। आप लोग आपस में मोबाइल नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनफॉर्मली या फॉर्मली, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर पीवी सुरेश सर
and Dr. Akshay Kumar sir, you are given a very busy schedule for the students, and I thank to Banjari sir. He is the academic counselor as well as coordinator in our study center, and our staff also, and basically students who are listening the from 1 hour. Okay, थँक्यू सर. Banjari sir, नमस्कार. तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे का? नाही सर, ओके. प्रोसेस बद्दल काही विचारायचं असेल तर नाही नाही, आपले क्लिअर आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. क्लियर आयडिया आहे का? ओके, हां हां. ओके ओके. ओके So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And Thank you. uh, Thank you, thank you for everyone. organizing Thank you, it. sir. Thank you. Thank you. Okay.